नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारा वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ क्लॉज सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज। एक बड़ा तड़कता भड़कता स्टेटमेंट आया है कि आईएसआई और रॉ को साथ में काम करना चाहिए। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया कि अचानक से ये सूरज पश्चिम से कहाँ निकल आया कि इन लोगों को आईएसआई और रॉ, कहीं ये दुल्लत और दुरानी की बात तो नहीं कर रहे थे? कुछ एग्जाम्पल वैसा सेट करने की कोशिश कर रहे थे, बट देर आर बिगर थिंग्स। आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर यूएस के एयरक्राफ्ट बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। कुछ तो बात है सर, ओवर टू यू। नमस्कार गायत्री जी, और आपको धन्यवाद मुझे याद करने के लिए अपने चैनल पर। सबसे पहले तो लेट मी से दिस दैट दिस इज ऑल पोस्चरिंग। जो आप सुन रही हैं बिलावल द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है दैट आईएसआई एंड रॉ शुड वर्क टुगेदर, what is Pakistan trying to prove is the bigger question which we should analyze. आप ध्यान देंगे कि, और ये इन्होंने राजदीप सरदेसाई जी के चैनल पे बोला है या उनके इंटरव्यू में बोला है, जो कि काफ़ी फेमस है अमन की आशा जैसी इस तरह के इनिशिएटिव्स के लिए। पहले भी इन द पास्ट ही हैज बीन एडवोकेटिंग अप्रोच despite all the sufferings which the country has been suffering for the last I don't know how many years। 1992 से मैं आपको गिनती करा सकता हूँ major terror action done by Pakistan, starting from 1992 bombings in Mumbai, and thereafter there have been whole lot of incidents which I don't want to actually cover and recount them। कुछ में तो मैं खुद भी इन्वॉल्व था उनको काउंटर करने के लिए। सो जो झेलता है उसको पता है। ये बात शायद neither Mr. Rajdeep Sardesai realizes it and neither Bilawal Bhutto realizes it. Despite the fact that Bilawal Bhutto has lost his mother, he's lost his father, if these people are unable to understand, then I don't think they will be able to understand anytime in the future also. Having said that, there is also a fact that Bilawal makes a I won't say that word exactly, but sometimes he makes statements which are counterproductive, which are not really connected with reality. No two agencies of an adversarial nation of intelligence responsible for external intelligence work together. Give me one example in the world where this has happened. And in the case of India, Pakistan, whose entire creation is an artificial creation, Pakistan has been artificially carved out of a land which belongs to India, which belongs to the civilization of India. भारत की सिविलाइजेशन का हिस्सा है हमारा जो देश है। उस देश में से आपने आर्टिफिशियली काट करके, चाहे उसको ब्रिटिश ने काटा हो या फिर ब्रिटिश ने अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हुए ये कार्विंग की हो अपने पर्सनल जियोपॉलिटिकल एम्स के लिए। उनको पता था कि अमेरिका वाज अ राइजिंग पावर, यूके वाज अ डिक्लाइनिंग पावर, and America was looking at itself as a global player, and for that it needed to keep an eye on Russia, it needed to keep an eye on China, it needed to keep a tag on Afghanistan, so and also India for that matter. So Pakistan was created where they could establish their influence without any interference or hindrance। इसीलिए जब ये कार्विंग की गई, जब ये निकाला गया, तो आप देखेंगे कि ports were given to them, sea ports were given to them, क्योंकि सिंध वॉज नेचुरली एक्चुअली अलाइन टू इंडिया। सिंध जो है हमेशा इंडिया गुजरात से लिंक रहा है, उसको कार्व आउट किया इसलिए कि उनको एक पोर्ट मिल जाए, जो मेजर कमर्शियल पोर्ट मिलना चाहिए, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द वेज टू एंटर अ पर्टिकुलर रीजन। एंड अल्फ्रेड महान की एक थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस की, द कंट्रीज विच कंट्रोल द सीज कंट्रोल द वर्ल्ड। ये it was done through, and he was a British scholar of geopolitics, so therefore ये जो किया गया, this was done with that kind of a intention। अब उसी को it is playing out। Bilawal wants to prove to the world that Pakistan is damn serious about eradicating terrorism। If they were so serious about
eradicating terrorism, then why have they been repeatedly, consistently carrying out attacks? और इसमें आपने एक वो you have sent a not a tweet but a poster in which Azhar Mahmood clearly says that they are now they are not able to take the burden. वो आप ये बोझ को उठा नहीं पा रहे हैं, उनके इतने लोग मारे गए हैं, मौलाना मसूद अजहर रो रहा है। और आपको पता है मौलाना मसूद अजहर क्या है? वो प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट है यूएन का, यूएस में और इंडिया के लिस्ट में। इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए कि पाकिस्तान एंड द आईएसआई बाय एक्सटेंशन हैव ऑलवेज इंडल्ज्ड इन प्रॉक्सी वॉर विथ इंडिया, और वो भी टेररिज्म के थ्रू, वो भी अपने 3 जो नवरत्न इस समय अभी बचे हुए हैं। आई होप दैट वी आर एबल टू टारगेट देम सून एंड एलिमिनेट देम, क्योंकि आई कीप टेलिंग दैट ऑफ सिंदूर इज नॉट ओवर। ऑफ सिंदूर अभी सिर्फ रोका गया है, जब टारगेट्स मिलेंगे तो आई एम श्योर दे विल बी एलिमिनेटेड द वे दे हैव टू बी एलिमिनेटेड, बिकॉज देयर इज नो प्रूफ रिक्वायर्ड फॉर हसन मजूर और Hafiz Saeed or Sayyid Salahuddin. They are established terrorists declared by India, declared by UN, declared by the world at large. So this is a proof enough. Think tanks have been asking, where is the evidence? Where is the evidence for Pahalgam? We don't have to show evidence to the world now. We have kept on showing evidence. हम evidence पे evidence दिखाते रहे हैं, and who has believed us? None. दे कंटिन्यू टू सपोर्ट। सेंट्रल कमांड के जो यूएस के जो सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं, जो मतलब ही इज अ 4-star जनरल, वो बोलते हैं ही इज समथिंग लाइक अ थिएटर कमांडर ऑफ सेंट्रल कमांड। ही गिव्स आउट अ स्टेटमेंट इन अ प्रॉपर पब्लिक हियरिंग saying that while they are with India on terrorism, they support Pakistan, knowing fully well that Pakistan is the actual epicenter of terrorism. What has US done? It has called Asim Munir as a special guest to USA. What is happening? ये क्या हो रहा है? We are a mature nation. We will like to build our ties with the US and the other countries to fulfill our national interest. और क्योंकि ये देखा गया है कि अब ज्यादा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स हो गई हैं, आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप्स मेरे ख्याल से खत्म हो रही हैं दुनिया से, और दुनिया और क्योटिक बनती जाएगी। सो बट दैट नॉट विथ स्टैंडिंग, वी आर स्टिल रियलाइजिंग कि वी नीड टू बिल्ड गुड रिलेशन विद द यूएस, रशिया एंड अदर पार्टनर्स which are there, which have stood by India in the past. But this dichotomous जो विरोधाभासी स्टेटमेंट्स आती हैं कि भाई we support India on terrorism but Pakistan is our good friend. So from one hand you are giving them money, $40 billion over 10-year period. That means हर साल 10 साल हर साल जो है आप 10 हर साल 4 बिलियन डॉलर तो मिल ही रहा है उनको। आईएमएफ से $2 बिलियन, $6 बिलियन तो उसको ऐसे ही मिल रहा है। वो कहाँ खर्च कर रहा है? अपना डिफेंस बजट में। डिफेंस बजट जो है वो इनका इस बार 20% बढ़ाया गया है। कल ही अनाउंस हुआ है ये डिफेंस बजट। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है इकोनॉमिक टाइम्स में, कल सुबह पब्लिश हो जाएगा वो आर्टिकल। देखिए, यू आर गिविंग हिम मनी फ्रॉम वन हैंड बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे हाथ से उनको आप वो क्या कर रहा है? टेररिस्ट को पैसा बांट रहा है। उसने खुद प्रॉमिस किया कि जैसे मोहम्मद और बाकी जो टेररिस्ट मारे गए हैं उनको कितना रुपया देने वाला है, 14 करोड़ की कुछ बात कर रहा था वो। सो इफ अगर आप इस तरह से पैसा बांटेंगे तो ऑब्वियसली वो गलत हाथों में जाएगा। सो आई डोंट बिलीव इन बिलावल स्टेटमेंट। बिलावल he is just trying to make a fool of everyone, and we will not get fooled this time. इंडिया को पता है that India can stand on its own. जैसा कि पहले भी मैं बोलता रहा हूँ, इंडिया की जरूरत लोगों को है इकोनॉमिकली, न कि इंडिया को दूसरों की जरूरत
उतनी ज्यादा नहीं है, जरूरत है, लेकिन उस जरूरत को हम फायदे फायदे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें अगर डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए शॉर्ट टर्म में, आत्मनिर्भरता हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो हमारी कमियां हैं इमीडिएटली, फ्यूचर में कोई अगर ऑप सिंदूर 2 होता है उसको लड़ने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए हम ये जो अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, डिफेंस के हथियार है, वेपन्स है, इक्विपमेंट है, इनको हम यूज कर सकते हैं टू लिवरेज। तो अगर अमेरिका टफ एक्ट कर रहा है तो हम फ्रांस के पास जा सकते हैं, फ्रांस से अगर हमको नहीं डील बनती है तो रशिया के पास जा सकते हैं, क्योंकि भाई सरवाइव तो हमने करना है ना, आपने तो आके हमारी लड़ाई लड़नी नहीं है, वो हमने देख लिया। ना आप सिंदूर में कोई आपकी मदद की, ना कारगिल में मदद की, ना 71 में मदद की, ना 65 में मदद की। 71 में तो अपनी 7th फ्लीट लेके आ गए थे आप लड़ाई रुकवाने के लिए। That was thanks to Russia that time USSR that we were able to achieve our aim the way we had to achieve it. So what I'm saying is India is going to fight its own battle, and if we have to fight our own battle, people like Bilawal Bhutto etc. are should be ignored. Their statements have no meaning. अब वहीं आप देख रहे हैं, आपने एक और चीज बोली है कि अमेरिका जो है वो काफी एयर एक्टिविटीज कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, सर्वेलेंस, कुछ लोग इसको न्यूक्लियर से भी जोड़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ कि अमेरिका जो है इस समय, देखिए पहले जब अफगानिस्तान में अमेरिका था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान वॉर 1 जिसमें जब वो मुजाहिदीन की लड़ाई हुई थी रशिया के साथ, तब से अमेरिका ने 11 बेसेस तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान में रखे हुए थे। धीरे धीरे चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ने की वजह से ये बेसेस इमरान खान के ड्यूरेशन में निकाल दिए गए, इनको बताया गया कि आप ये बेसेस हटा दीजिए, बट ये सिर्फ ऑर्डर था। इसमें से कितने बेसेस रह गए थे इसका अभी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। इन माय ओपिनियन देयर वुड बी सम बेसेस व्हिच आर ऑफ द यूएस, बिकॉज विदाउट दैट दे कैन नॉट मॉनिटर चाइना, वो चाइना के ऊपर नजर नहीं रख सकते हैं। दे कैन नॉट मॉनिटर रशिया, दे कैन नॉट मॉनिटर ईरान, दे कैन नॉट मॉनिटर अफगानिस्तान, और इन सबको मॉनिटर करना उनके लिए जरूरी है। एंड उसके लिए जो बेस्ट लैंड अवेलेबल है दैट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज स्टार्व्ड, भूखी है पानी के लिए, भूखी है इकोनॉमी के लिए, भूखी है क्या बोलते हैं मेडिकल हेल्थ सारी फैसिलिटीज के लिए। और जो पैसा वो कमाता है, वट एवर मनी इट गेट्स फ्रॉम आफ्टर बेगिंग टू द IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड सऊदी अरेबिया एंड अदर फ्रेंडली कंट्रीज एज पर देम, हालांकि वो भी अब धीरे धीरे अपना किनारा कर रहे हैं पाकिस्तान से, दे आर जस्ट नॉट गिविंग देम द वे दे यूज्ड टू गिव एड टू देम इन द पास्ट, उसको वो इस्तेमाल कर रहा है डिफेंस में। कई ऐसे असेसमेंट्स आ रहे हैं कि इफ दे कंटिन्यू टू डू दिस, पाकिस्तान में नॉट बी एबल टू सर्वाइव अनदर 2 to 3 years, मोर देन 2 to 3 years। तो ये उसकी हालत होने वाली है। इट माइट इम्प्लोड इनटू 3-4 कंट्रीज, दैट विल बी अ सिक्योरिटी चैलेंज फॉर द रीजन। हमें भी उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम अगर ये इस तरह की एक सिचुएशन आती है तो हाउ डू वी मैनेज दैट सिचुएशन, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वी डोंट वांट रेडिकलाइज्ड पीपल इन आवर कंट्री। हमें रेडिकलाइज्ड आदमी नहीं चाहिए जो गदवाए हिंद की बात करते हैं, आप समझ रही हैं। हमें ऐसे आदमियों को करेक्ट तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। दे विल हैव टू बी टोल्ड टू गो टू अदर मुस्लिम नेशंस इफ रिक्वायर्ड, बट if they are coming also they have to be properly screened। एक क्वारंटाइन सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इन सब चीजों को अपने में एसिमुलेट कर सकते हैं। तो जहां तक अमेरिका का सवाल है, the aim of America now is that because Pakistan is in dire need of money, देखिए रशिया का चाइना का जो पैसा था वो भी अभी तक उसने पे नहीं किया है, $26 बिलियन, उसको बार बार रोल ओवर करे जा रहा है चाइना, कब तक रोल ओवर करेगा। तो उसको पता है कि पाकिस्तान इज नाउ in a position of a very very difficult सर्वाइवल की बात आ चुकी है। स्पेशली देखिए वाटर भी खत्म हो गया, उनका पानी पूरा सूख गया, गेहूं का फसल सूख गई है। जो देश पहले दूसरों को गेहूं देता था, आज गेहूं खरीदने की नौबत आ सकती है उसकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव नॉट चेक्ड इट अप।
मैंने डिटेल में इसकी एनालिसिस नहीं करी है, अगर एनालिसिस करूंगा तो शायद पता चलेगा कि किधर what is going to be the food situation of Pakistan, but definitely it is not going to be better than last year. There has been a drop as per some reports. काफी परसेंटेज ड्रॉप हुआ है इनका प्रोडक्शन का. लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ था बट इस साल ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ द IWT हेल्ड इन अबेंस. सो ये सारी चीजों को देखते हुए आई थिंक अमेरिका इज टेकिंग एडवांटेज, और फिर वो अपनी जो है यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ा रहा है. और इसके दो एम हो सकते हैं. वन एम कुड बी दैट टू कीप द पाकिस्तानीज इन चेक. ओके, पब्लिकली भले ही बोलें कि भाई ठीक है पाकिस्तान इज आवर फ्रेंड एंड ऑल दैट, बट in my opinion it is also having, they are also being present here to keep the Pakistanis in control, not to take any stupid action, because they are aware, उनको पता है कि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो रखी है, बहुत पतली हो रखी है. they are really in a bad shape. so US का यहाँ presence could be because of that also. एंड जहां तक एयर स्पेस का सवाल है, देखिए पाकिस्तान में ना दम है ना गूदा है अपना एयर स्पेस बंद करने के लिए अमेरिका को. उसका जब मन आएगा तब वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो मिलिट्री पावर है वो मेरे ख्याल से एक दिन में पाकिस्तान को नष्ट कर सकती है, ध्वस्त कर सकती है. उन्होंने ही हथियार दिए हैं, उनको पता है कि ये F-16 कैसे चलता है, उसको मारने का क्या तरीका है. तो दे हैव द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट. चाइनीज इक्विपमेंट की हालत आपने देखी ली है, जिससे अगर वो काउंटर करने की कोशिश करें तो चाइनीज इक्विपमेंट का क्या हाल है. चाइना घबराया हुआ है कि उनके जो शेयर्स शुरू में काफी बढ़ रहे थे वो सारे डाउन होते जा रहे हैं. ऑर्डर्स इंडिया को मिल रहे हैं अब डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, चाहे वो अर्मेनिया हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, हर जगह अफ्रीकन कंट्रीज भी इन सब इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट को गौर से देख रही हैं. स्पेशली आकाश तीर हो गया, आकाश मिसाइल्स हो गई, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिया इज नाउ हैविंग एन अपर हैंड. so therefore Pakistan is in a very critical situation, and there and hence वो अलाउ कर रहा है पाकिस्तान US को, जो हो जाए तुम करो, हमको बचा लो भाई, हमारी जान बचा लो. जैसे वो क्या बोलते हैं, अजहर महमूद रो रहा है ना, हम थक चुके हैं, वी आर टायर्ड ऑफ नाउ fighting. So if you are tired, then give up. Let Pakistan take some concrete action, put them in jail and not in house arrest. Right? So मेरे ख्याल से मेरी नजर में ये जितनी भी एक्टिविटीज आप बात कर रही हैं, सी अगर US is flying over the over Pakistan, it means that they are basically apprehensive that Pakistan may not be able to manage its strategic assets, etc. Right? That is a circumstantial, वो है एक डेरिवेटिव है उसका. लेकिन it could be any other reasons. It could be, like I said, it could be a base, a military base from where they are keeping now a watch over Chinese activities. Maybe Americans are trying to push out the Chinese from Balochistan. And you can imagine फिर क्या होगा if the Americans are if Americans get into Balochistan, there may be a confrontation आपस में. चाइना US का confrontation हो सकता है वहां पे, और उसमें हमेशा नुकसान किसका होगा, पीपल ऑफ बलूचिस्तान और पाकिस्तान का. सो इस समय सिचुएशन काफी क्योटिक है, काफी कंफ्यूजिंग है. वी नीड टू वेट एंड वॉच एंड सी कि आगे क्या होने वाला है. इतना मैं जरूर बता दूं कि जो भी होगा भारत को फायदा ही होगा. सो वी नीड टू बी carefully watching the situation around us. Slowly, whatever is happening around us, whether it is Bangladesh, Myanmar angle, और इट इज बांग्लादेश, म्यांमार, मिजोरम, जिसकी वो लोग बात छेड़ते हैं, या फिर वो एक पोस्टर निकाला था पाकिस्तानी मीडिया ने, शी जिनपिंग और यूनुस और तीसरे थे मुनीर को साथ में रख के कि नाउ व्हाट विल यू डू करके इंडिया के लिए, कि अब क्या करोगे. सो इंडिया ने कर दिया जो करना था, तुम्हें जो करना था तुम करो, देखते हैं कौन सक्सेसफुल होता है. एंड इन दिस ऑल्सो लेट मी टेल यू, अगर किसी का नुकसान होगा वो बांग्लादेश का नुकसान अल्टीमेटली, क्योंकि चाइना ने कभी भी किसी को एक्टिवली सपोर्ट नहीं किया है.
इट माइट गिव देम सेकेंड रेट वेपन सिस्टम्स जो कि उसको जरूरत नहीं होगी, जो वो डंप कर रहा होगा, और अल्टीमेटली अगर कोई कन्फ्रंटेशन होगा तो यू नो व्हाट विल हैपन टू बांग्लादेश. ओके, बांग्लादेश की नेवी इज एज गुड एज नॉट देयर, पाकिस्तान की नेवी इज एज गुड एज नॉट देयर. हमारा एक सेक्शनल नेवी, इंडियन नेवी इज द किंग ऑफ इंडियन ओशन. लेट मी टेल यू, इंडियन नेवी इज द किंग ऑफ इंडियन ओशन रीजन. और इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी का दबदबा आने वाले वक्त में भी बना रहेगा. कुछ दिनों से हमने मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा कम कर दी थी अपनी शिप्स वगैरह की, लेकिन ऑल दैट इज नाउ टेकन केयर ऑफ. आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो काफ़ी काफ़ी कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सैंक्शन हुए हैं, गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं. होपफुली जैसे थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, दुनिया में एयरक्राफ्ट कैरियर इज द मैक्सिमम खाली चाइना के पास है और इंडिया के पास है. चाइना के 2-3 और डेवलप हो रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिया का भी एक डेवलप हो रहा है. हाँ, इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर थोड़ा छोटे हैं, दैट्स ओके. सबसे बड़े जो कैरियर्स हैं 11 हैं जो यूएस के पास हैं. तो ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि ये लोग कुछ नहीं है. इन द इंडियन ओशन चाइना इज नॉट इफेक्टिव. लेट चाइना कम आउट ऑफ साउथ चाइना सी से तो बाहर निकले, ईस्ट चाइना सी से तो बाहर निकले. वहां पे देयर इज अनदर पावर विच इज सिटिंग ओवर देम. सो आई थिंक ओवरऑल वी आर ऑन द राइट ट्रैक. हमें अपनी सिर्फ ताकत बढ़ानी है, बोथ इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, और डिप्लोमेटिक यानी कि जो डायलॉग और टॉक्स हैं, मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, उनमें अपना जगह बनाना. और तीसरा है मिलिट्री, क्योंकि अगर आपके पास मिलिट्री पावर नहीं है, नो बडी विल लिसन टू यू. कोई आपको सुनेगा नहीं. तो इस समय ये जो त्रिशूल है हमारा, ये बिल्कुल चलते रहना चाहिए. त्रिशूल में आर्थिक, मंत्रणा और मिलिट्री यानी कि ब्रह्मास्त्र, जिसका एक नमूना ब्रह्मोस के तौर पे लोगों ने देख भी लिया था. कुछ कमियां हैं हम लोगों की, उसको हम पूरा कर रहे हैं. वी आर टेकिंग नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर दैट कि ऑप सिंदूर में इससे भी ज्यादा तगड़ा रिस्पांस हम पाकिस्तान को दे सकें. और ये बिलावल भुट्टो, आईएसआई और रॉ के जो कंबाइंड एक्शन की बात कर रहे हैं, ये एक सिर्फ वो है, डिफ्लेक्शन है फ्रॉम द रियल इश्यूज. हाउ कैन आईएसआई डंप इट्स प्रोटीजेस? उसके फ्यूनरल में जाके खड़ा हो रहा है, उसको डंप कर देगा? आईएसआई को क्या चाहिए कोलैबोरेट करने के लिए रॉ से? भाई तुम्हारे पास बैठा हुआ है ना वो तीनों, उठाओ और उनको क्या बोलते हैं, फांसी की सजा दो. They have killed so many people. They're responsible for killing of so many people. इसमें कोलैबोरेशन की क्या बात है? किस एंगल से कोलैबोरेशन चाहिए? भाई तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, वो सो रहा है, तुमने उसको हाउस अरेस्ट कर रखा है. हाउस अरेस्ट बहाना है. They have been given protection from unknown not gunmen kind not of being thing. not being no not only unknown. अगर इसी उसमें ऑप सिंदूर में अगर हमें उनकी लोकेशन करेक्ट पता होती, वी वुड हैव ठोकर दे, उनके ऊपर भी जाता. So the whole idea was to kill terrorists, not to attack military bases. If you start attacking our military bases, then my friend, you are no more going to be honored with this kind of a strategy. We will hit you in all your bases. So I mean these are things. हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं, तो पागल हो जाओ यार. गो एंड जंप इन द झेलम रिवर जो तुम्हारे पास आती है ना, पाकिस्तान में घुसती है. पानी रहेगा तो आएगी शायद. अभी तो पानी भी हम लोग उसका भी कुछ इंतजाम कर रहे हैं कि डूबने के लिए मंगला डैम में जरूर जाके कूद सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने एलईटी ने अपने टेररिस्ट वगैरह ट्रेन किए थे. सो आई थिंक these people need to be treated with hard action. There is no question of dealing with diplomacy etc and dialogue with these टेररिस्ट जो है ना, आतंकियों के साथ. तो ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए. इस समय इनको बहुत मौके दे दिए गए, बहुत मौके दे दिए गए. कश्मीर में बंद था जेल में, तब छोड़ा गया और अपनी आदत से बाज ही नहीं आया. IC-81 फोर्स के बाद ये तो और इसको खून लग गया, अब रो रहा है. ये बहाने मार रहा है. ये सब दिस इज ऑल ड्रामा. दिस इज ऑल ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड एंड टेल इंडिया दैट लुक,
वी विल नॉट डू दिस इन फ्यूचर, स्पेयर अस, हमें छोड़ दो टाइप, ये नहीं छूटेंगे, दे विल बी टेकन टू टास्क. So I think Right. you should, with this, I have finished on all the topics which you had given me. जी. Overall, this is my view, और मेरा व्यू मैंने एक बार बता दिया. भारत सही रास्ते पर है, और जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी वहाँ उस तरह का भारत कदम लेगा, चाहे वो कोई भी देश हो, अमेरिका सर हो. एक हमें एक्सपीरियंस पास्ट में भी रहा है ना, हमारे एक रॉ के हेड थे. He also worked हम्म. with ISI head, and what was the result after that? So देखिए डबल क्रॉसिंग इन इन exactly. इंटेलिजेंस, इन हम्म. इंटेलिजेंस एक इनहेरेंट इनकी प्रैक्टिस होती है. दिस इज द ड्रिल ऑफ डबल क्रॉसिंग, तो एक उनके उसमें होता है, कल्चर में है. तो व्हाई डू यू वांट टू गो एंड जंप इनटू अ प्रॉब्लम यार? दैट इज व्हाई आई सेड, शुरू में आपने ध्यान दिया होगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज मस्ट नेवर ever work together if they are not friends. And given the kind of issues जो हमारे बीच में issues हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, दोस्ती तो दूर की बात है, हम न्यूट्रल भी रहना मुश्किल है हमारे लिए. न्यूट्रल भी रहना मुश्किल है. तो as in such a environment and in such a condition, these statements are just to be ignored, not even to be thought of also. जी. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा. 8 लाख का टारगेट है. वी हैव जस्ट क्रॉस 7 लाख. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड आई मुबारक ओ हो. यू. थैंक यू सो मच सर. आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का सहयोग, जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, एंड इट मैटर्स अ लॉट. और 8 लाख का टारगेट है नेक्स्ट. जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कुछ टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय थैंक यू सर. जय जय. जय